पूरी तरह से आम आदमी पार्टी करप्शन में लिप्त हो चुकी है। आपने शराब घोटाला देखा, कोई गलत घोटाला नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घोटाला है। घोटाला जो हुआ है, 4-5 लोग ऐसे हैं शीर्ष नेतृत्व के चारों तरफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिनके खिलाफ चाहे शराब घोटाले में हैं। जो पार्टी बाबा साहब की केवल फोटो जिस पार्टी को चाहिए, बाबा साहब के विचार नहीं चाहिए, मैं उस पार्टी में नहीं रह सकता। ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದವರಿಂದ ಮುಜುಗರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿಯು ಈ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರದೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ಎಎಪಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ದಿನಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ ಎಎಪಿಯ 7 ಶಾಸಕರು ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿಗೆ ಗೆಲುವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಎಪಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಎಪಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದಿಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಸಮಾಧಾನಿತರಾಗಿರುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಎಎಪಿಯ 7 ಜನ ಶಾಸಕರು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯ ಎಎಪಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ರೋಹಿತ್ ಮೆಹ್ರೋಲಿ, ಮದನ್ ಲಾಲ್, ರಾಜೇಶ್ ರಿಷಿ, ಪಾಲಂನ ಭಾವನಾ ಗೌರ್, ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಎನ್ನುವರು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ 6 ಜನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೆ ಇರೋದೇ ಅವರು ಎಎಪಿ ತೊರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯನ್ನ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿ ಎಎಪಿ ಸಂಸದೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಅವರು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸವನ್ನ ಸುರಿದಿದ್ರು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನೀವು ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 70 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ಅವಧಿಯಿಂದ ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಎಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 8ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಮದ್ಯ ನೀತಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಎಎಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸಹ ಜೈಲನ್ನ ಸೇರಿದ್ರು. देखिए, आज मैंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी तरह के पदों से इस्तीफा दे दिया है और इसका कारण मैंने डिटेल एक ट्वीट किया है विद लेटर के साथ में. आप उसमें देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं. लेकिन मेन रीजन आज है भ्रष्टाचार का मुद्दा. आम आदमी पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ अन्ना आंदोलन के से, और हम लोगों का एक ही मकसद था कि हम दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और ये जर्नी पूरे देश में जाएगी. भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी सबसे बड़ी एक पहचान बनेगी. यही सोच के मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आज आप दिल्ली में देख सकते हैं, जहाँ भी चर्चा करो वहीं पर ही आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है. तो इसी वजह से मैं काफ़ी दिनों से दुखी भी था. बहुत सारी बातें अलग अलग तरह से आ रही थी. तो आज मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि मुझे आम आदमी पार्टी मैंने छोड़ दी है और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. और मैंने मेहरौली के लोगों की 10 साल ईमानदारी से सेवा की है. मेहरौली में जाके आप सर्वे कीजिए. मैं सभी न्यूज़ वालों को ये ओपनली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने 10 साल में कभी भी 1 रुपये की बेईमानी नहीं की. बहुत अच्छा व्यवहार और काम की राजनीति, मतलब 3 तरह से मैं मानता हूँ. ईमानदारी, काम और व्यवहार, 3 सिद्धांतों पर मैंने एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैंने मेहरौली के लोगों के लिए काम किया है. लेकिन आज आप कहीं भी देखोगे, जो भी कैंडिडेट्स हैं आप उनके बारे में जानोगे, तो आज पूरी तरह से आम आदमी पार्टी करप्शन में लिप्त हो चुकी है. मेन रीज़न करप्शन का ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो की शुरुआत हुई थी वो हुई थी करप्शन फ्री करने के लिए. तो यही एक आज हमारा मुद्दा है. मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2011 से जुड़ा था, जिस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनी थी. हमें नहीं मालूम था पार्टी बनेगी, चुनाव होगा, क्या होगा. हम लोग तो एक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे और उसके लिए हमने तन मन धन से खूब सेवा की. पार्टी भी इलेक्शन में हमने संगठन बनाया, संगठन बनाने के बाद चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी बनी और उस समय बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगा.
लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ यही पार्टी है जो भ्रष्टाचार मिटा सकती है, यही पार्टी है जो देश के अंदर एक अच्छी व्यवस्था को ला सकती है। और हम साफ कहते थे हम राजनीति करने नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि बहुत ही बुरा हाल हुआ। व्यवस्था ऐसी बदली कि भ्रष्टाचार जिसके लिए हम लड़ते थे, आज हम खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में घुस गए। आपने शराब घोटाला देखा, कोई गलत घोटाला नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घोटाला है। घोटाला जो हुआ है उसमें करोड़ों रुपए की लेन देन हुई। आप जानते हो कि गोवा के चुनाव लड़े गए, पंजाब के चुनाव लड़े गए, उसी भ्रष्टाचार के पैसे से लड़े गए। तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए जब आए थे, जब हमने सवाल पार्टी में उठाना शुरू किए ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो होता है क्या, जब मुखिया जब हिटलर बन जाता है तो वो क्या करता है, जो भी आदमी पूछने वाला उसको पहले बाहर निकालता है। क्योंकि जब पार्टी का संविधान बना उसमें क्लियर कट था कि जो भी कन्वीनर होगा वो 2 साल से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो बदल दिया। उसमें था किसी बिल्डर को टिकट नहीं देंगे, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे, जिसपे केस होगा उसका टिकट नहीं देंगे। आज आप उठा के देखो, हमारे यहाँ 40 से ज्यादा लोग हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, जिसपे किसी पे रेप का केस है, किसी पे मर्डर का केस है। तो पार्टी एकदम बदल गई। जब बदल गई तो हम जिस भ्रष्टाचार को रोकने आए थे, तो हम लोगों का बहुत दिन से चल रहा था कि हम लोग गलत जगह चले गए, गलत जगह आ गए, हम लोग सुधार करने आए थे। लेकिन आज सुधार ना होकर उल्टा काम चल रहा है। अन्ना हजारे भी कहते थे कि ये राजनीति जो है दलदल है, इसमें जाओगे तो धंस जाओगे। लेकिन अन्ना जी के, अरविंद जी ने साफ कहना था कि हम दलदल उतरेंगे तभी गंदगी में उतरेंगे, तभी गंदगी साफ होगी। लेकिन जिस तरीके से एमसीडी के अंदर हमने देखा, काम हो नहीं रहे, पैसा लूटा जा रहा है, धन लूटा जा रहा है, कूड़े के ढेर लग रहे हैं। और पिछले सालों में तो ये हालत रही कि हम लोग एक सीवर की लाइन डालने के लिए बोलते थे पैसा नहीं है, पानी की लाइन डालनी है पैसा नहीं है, गंदा पानी आ रहा है पैसा नहीं है। जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप फ्री बांटने के लिए नया 2100 का ले आए, 18,000 ले आए, 5,000 देंगे उसको, ये देंगे। ये केवल एक झूठ का पुलिंदा अरविंद केजरीवाल लेके आए हैं और झूठ के आधार पर उन्होंने राजनीति शुरू करी इसकी। और देश को अगर डुबाना है तो फ्री बांटते चले जाओ, वो हालात हो गए। हमारा जो टिकट काटने की बात अगर आप करते हैं तो 9 दिसंबर को लिस्ट आई और आज 31 जनवरी है। तो इस बीच हमने विचार विमर्श किया और हमने ये असेस किया कि आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा के साथ आई थी उससे कहीं दूर चली गई है। आज सभी तरफों से, सभी चारों हर लोग, प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा है कि आम आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, घिरी हुई है। और ये बात सही है कि कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं शीर्ष नेतृत्व के चारों तरफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिनके खिलाफ, चाहे शराब घोटाले में हैं, चाहे स्वाति मालीवाल वाले केस में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। तो ऐसे लोग आज पार्टी को गवर्न कर रहे हैं और वही सारे डिसीजन ले रहे हैं। शायद अरविंद केजरीवाल जी जो है उनकी बात ज्यादा सुनते हैं, दूसरे लोगों की बात नहीं सुनते। और पिछले कुछ 1 महीने में जो हमने चुनाव प्रचार देखा, आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार इतना निम्न स्तर का हो गया कि छोटी छोटी बातों में जात पात पे आना, यमुना में जहर के पानी की बात करना, ऐसी बातें हैं जिससे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि भाई तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम पता नहीं दुनिया में रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। अरविंद केजरीवाल जी एक बार बात करते हैं कि मैंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, तो फिर बिजली के बिल क्यों आते हैं लोगों के? फिर तो बिल आने ही नहीं चाहिए। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि मैंने बिजली 200 यूनिट फ्री की है, बस एक लाइन कहेंगे कि मैंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। फिर वो कहेंगे मैं 24 घंटे बिजली देता हूँ। आप चले जाइए रंगपुरी पहाड़ी पे, आज भी 4 से 5 घंटे का पावर कट है, आज सर्दियों के मौसम में भी। तो ये सब झूठा प्रोपगेंडा है। और अब आप कोई हमें कह सकता है कि फिर आप 5 साल इस पार्टी में क्यों रहे? हमें मालूम था कि अगर हम इस पार्टी के साथ मिलकर नहीं चले 5 साल तो हमारे इलाके में कोई काम नहीं हो पाएगा। आज हमारे एरिया में कोई आदमी ये नहीं कहता कि काम नहीं हुआ। हाँ, जिस आदमी को हमारे बदले में टिकट दिया गया है उसकी क्रेडिबिलिटी देखें। आज वो आदमी चुनाव हार रहा है, उसका चुनाव उठ नहीं पा क्योंकि उसी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो टिकट के लिए डिजर्व नहीं करते थे। हम किसी लालच में हमने आज रेजिग्नेशन नहीं दिया, बट हम ऐसी पार्टी का हिस्सा आगे नहीं बनना चाहते जो भ्रष्टाचार में व्याप्त हो। हमने बहुत दिन सोचा, टिकट नहीं मिली, उसके बाद भी लगभग 1.5 महीने से हम इस पार्टी के साथ हैं। पर अब चूंकि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दी है, 20-22 लोग, अब उनकी परफॉर्मेंस, पार्टी की परफॉर्मेंस और टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस से ऐसे लगता है कि वाकई पार्टी ने गलती की है। और अगर पार्टी ने गलती की है तो पार्टी अपने उन सिद्धांतों से, उन आदर्शों से दूर होती चली जा रही है और ऐसे में फिर पार्टी के साथ रहने का मन नहीं कर रहा।